Ama Milpak mana mama berpisah. में रखो बाजी। मैंने उसको गर्म करके लपेटा है, फिर भी नहीं जमा अभी तक, और दूध भी आज कम है। तो बाबा गिलास ले लो ना। तुम मास्टर में मैं बता दूँ मिलता है कि ले आना बाबा के साथ जाओ। अंडे भी और सैलेड भी। आप नए यूज नहीं कर रही हो क्या चीज? बैकग्राउंड अभी फिलहाल ये यूज कर रही हूँ। आप इधर की कर है नहीं। जी आज किसकी है? एस्थमा किसका था? अस्सलाम वालेकुम रोटी कुरत मेरा। चलें, इंस्ट्रक्शंस आपको नजर आ रही है? जी जी आ रही हूँ। चलें, मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. इंस्ट्रक्शंस पढ़े ऊंची। Okay. 28 years old lady presented to you in OPD. She is known case of asthma for last 5 years. She got married 6 months back and have LMP on the 10th of December 2025. She is on capsule Combivir BD and have a regular checkup. This is a structured discussion. Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Faiza Haq. I'm one of the exam candidates. I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. So after the introduction with the patient, briefly introducing myself and then taking introduction from the patient, I will complete the missing information and I will move towards the I will ask the patient if she is sure of her dates, if there was any kind of irregularity in the cycles. As my patient is a known case of asthma, so I will ask her I will start off, with my history of presenting illness, and I will ask her if she is having any trouble or any condition related to her the disease. Now, for example, shortness of breath or chest tightness or wheeze, etc. I will, as she's having asthma for the last 5 years, so I will ask detail about the condition. I will ask about the onset, duration of the disease. When was the last time she went to the physician? Did she have any preconception counseling from the physician? What medications she was put on? Was she compliant? Did she know how to use the medications? And then I will ask if there was any kind of hospitalization due to this condition. And what was the severity? What treatment did she take? And I will ask about any vaccination if the patient has been updated on specifically influenza, any triggers that she might know which cause the exacerbation of the asthma. I will. He has a triggers with the pollen and the cold. Okay. So I will confirm if in this pregnancy she has faced any kind of exacerbation, and if she was. He had the last attack in the first month during the start of this pregnancy. Okay. Which was So for which she was get admitted and have injectables and inhalers. Now she's okay. on So Combivir BD. okay. So okay. Sorry. So, as my patient had a severe attack in the beginning of this pregnancy, so I will ask about the details. I will further ask about her antenatal history. As according to the LMP, my patient is around 15 weeks. So. I will ask if the pregnancy was spontaneous or planned. Has she done her dating scan? Any screening for Downs has been done?
has she done her booking labs, and if there was any Dating significant scan, complication. booking investigations, all are normal. Okay, so then I will continue towards the if she's taking the if she's taking folic acid or not, and then I will ask about her past medical history, any chronic other condition that is that is in addition to this condition. I will ask about the past surgical history, her gynecological history, obstetric history. Ma'am, is there what is the obstetric Not history of the significant. patient? She's primary Okay, gravid अब. She's primary okay, she's married for primary 6 months है ना, आप देखें तो सही. Oh, She's okay, जी, sorry. she's primary अच्छा, then gravid. Okay, family history, her drug history, any the energy history is already confirmed. Her socioeconomic history and personal history in specific. I will ask about any habits of her smoking, or her spouse or anybody in the home is using any smoking or anything like that, which could trigger the asthma. After I'm done with the history, I will move towards the examination of the patient, in which I will do the general physical examination, in which I will rule out the jaundice, pallor, any lymph node, any thyroid palpation, and all the vitals, blood pressure, pulse, respiratory rate in specific. Examination I is will do the normal. just Okay. Then I will do the general. I will do the chest examination specifically to auscultate for any fees to assess the severity of the patient currently. I will do her abdominal examination just to see any superficial or deep tenderness or superficial deep palpation. I will do the investigations in which the baseline investigations will be done, in which I will do the complete blood picture, to Normal see है. the hemoglobin platelets. Okay. I also need the OGTT if that has been done on the booking. Not done yet. Then, okay. I also need the peak expiratory flow rate if she has any Not current available. recent. Okay, so No oxygen recent saturation available. oxygen saturation if available right now currently. She is stable at present. Okay, dating scan if available. That is normal. Already told you. Okay, so in the Why are you management, asking I will. repeatedly? How will you manage this antenatally? Okay. Okay. In management, I will offer support to the patient. I will counsel the patient as my patient already knows about her condition. So involving the MTT, which will include the senior obstetrician, myself, and an anesthetist, a neonatologist, and a respiratory physician. I will educate the patient about her condition further, and I will tell her that she has to stay away from the trigger, or she has to avoid the trigger, as in her case, it is the dust and the cold. So I will tell her to stay away from it. And I will also educate her about the compliance to medication. It is very important. My patient has already had a exacerbation and episode at the beginning of the pregnancy, which might be further exacerbated, or she might have another episodes during the further pregnancy. So I will tell her to come. I will educate about the compliance of the medications. I will also educate about the vaccination, that she has to be updated and to avoid any viral infections, because that causes around 34% of exacerbation in asthma. Then, as my patient is around 15 weeks, so I will further I will tell her about the fetal-maternal risk that could occur due to the condition. That can include in the fetus. It can include the preterm labor, the low birth weight. NSU admission, and the new neonate might also genetically have the asthma. In the mother, she can have a preeclampsia and the exacerbation of the asthma, and she can land up into cesarean section, emergency cesarean section, that the rate is slightly increased. So I will also tell my patient that she has to do her growth scan, her anomaly scan around 18 to 20 weeks. She has to do her all blood lab investigations. She has to take her oral hematinics, and around the time of delivery, we will decide the mode of delivery depending upon the fetal maternal condition. And she has to continue the medications for which in her case is the steroid tablets. And she has to have frequent hospital visits, so we can monitor her more closely, as she's a severe case of asthma. So we will also tell her to repeat the OGTT, and her blood sugars will be monitored, because the steroid can cause a higher blood sugar levels, and the patient has a higher chance of developing GERD. Then the mode of delivery will be according to the
the presentation of the PP at that time after ruling out this cephalic disproportion as to the primary, and depending upon her condition of the asthma, we will decide her mode of delivery at that time. During the intrapartum care, we will do in a consultant-led unit, and electronic fetal monitoring, depending upon the severity of the condition at that time, will be decided whether intermittent or continuous. As my patient is already taking steroid tablets, so she will be also to avoid the steroid stress, आपकी we will give पेशेंट her टेबलेट IV तो नहीं ले hydrocortisone. रही? आपकी टेप ये टैब पेशेंट कैप्सूल कैम्बिवल कैप्सूल, कैसे लेते हैं? मुझे तो लगा कि ये स्टेरॉइड की कोई टैबलेट है। आपको कॉम्बिविर को पता है कि कॉम्बिविर क्या होता है और वो नहीं कैसे नहीं, लेते हैं? मैंने कॉम्बीवेर नहीं सुना पहले। अच्छा, चले, मैंने ग्रुप में भेज दिया। चलें आगे चलें। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसको मैं स्टेरॉइड की टैबलेट कंसिडर करके बता रही हूँ कि अगर IV चले हाइड्रोकोर्टिसोन चले, अब विल चलते बी, जाएं, भी टाइम है आपके ओके पास, जल्दी करें। okay, IV hydrocortisone will be indicated, which will be 6 to 8 hourly, around 100 to 200 milligram. Now, my patient can also be offered epidural anesthesia for the pain relief. Specific NSAIDs and PGF12 ergometrine will be contraindicated because they can exacerbate the asthma condition. Once the baby is delivered, once the baby is delivered, general post-natal care will be given to the patient. Active third stage of labor will be managed, and patient will be seen for the PPH, VTE, venous thromboembolism. Examination will be done, assessment will be done to avoid the risks, and breastfeeding encouragement will be done. We will educate the patient that usually the patients, the condition in the patients after the delivery is normalized, or it comes back to the normal condition, the previous condition. But in some cases, by 1/3 of the patients, the condition is exacerbated. So we will keep involved the MDT, which will include the respiratory physician who will help out in the further treatment. And the patient can continue breastfeeding as the medications are safe. The patient will be followed up for the medical review in 68 weeks. And if there is, we will also tell the patient that now okay, after explaining everything to the patient, I will tell the patient about the red flag signs at the end, that if the patient goes to home, टाइम्स so अप। she should know that if there's, okay. स्टॉप। जी, आप बताएं। इसमें मैम वो रहता था कि रेड फ्लैग साइंस इसमें बताने थे पेशेंट को, कि अगर उसको एक्सेबरेट कहीं पर होती है, कहीं पर उसको जो है ना चेस्ट टाइटनेस हो या कुछ भी इस तरह के इशू हो, तो उसने आना है वापस और हॉस्पिटल में बताना है। और आपका जो ये बज बताना था वर्ड कि था ना, वही आपने जी उसको गलत इंटरप्रेट किया। हाँ, ये है कि मैं उसको स्टेरॉइड की टैबलेट समझी। इट वॉज नॉट एन ओरल टेबलेट। अच्छा 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 कैप्सूल कॉम्बिवेर जो होता है वो इनहेलर टाइप होता है, इसको आप अच्छा सक करते हैं। इट इज अच्छा, जस्ट लाइक ये इनहेलर। मुझे इसके नहीं पता। साथ एक मशीन आती है, उस मशीन के अंदर डालते हैं, जैसे वो सूटा लगाते हैं ना हम्म। सिगरेट का, अच्छा अच्छा इसको भी अच्छा ऐसे अच्छा, करते हैं। ये मतलब इनहेलर के उसमें आता है। ये इनहेलर में आते हैं, इट इज नॉट ओरल अच्छा अच्छा अच्छा, स्टीरॉयड। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, सही ओरल सही। स्टीरॉयड्स जो आते हैं वो बकायदा प्रेडनिसिल जो ओरल दिए जाते हैं ना, हम्म, ओरल जी जी, प्रेडनिसिलोन ही दिया जाता है, डेल्टा कॉटिल दी जाती है डायरेक्टली, और किसी नाम से नहीं अच्छा, आती इसके अंदर बुटेनिस। और ठीक है ये ठीक है। आपका बीटा ब्लॉकर और उसके साथ दूसरे जो हैं स्टीरॉयड मिक्स है, बट इट इज एन इनहेलर। सूटा इसको ठीक, कहते हैं, ये सूटा कैप्सूल टाइप होता है। इसको वो अच्छा अच्छा, माउथ से जो है ना, हम्म जैसे इनहेल करते हैं ना इनहेलर के साथ, तो ये हम्म, एक मशीन होती है, उसके अंदर कैप्सूल डालते हैं, उसको करते हैं तो उसके अंदर से वो सारी कुछ चली जाती है। सो दिस वाज अच्छा, द सही फर्स्ट सही, वर्ड ठीक है। हाँ, ये बेसिकली। तो स्टेप 2 पे थी, फिर मतलब इसको ये स्टेप तो 3 भी पे ही स्टेप होना था। टू पे थी। ठीक है, जी जी हाँ, सो ठीक दिस है। वाज आपने हम्म, स्टार्ट वाज योर गुड। मैं अब आपको इसकी की पे ओके, दिखा देती हूँ कि सबसे पहले जो आपकी ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके अंदर ये जी, 2 नंबर इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, तो इट वाज ओके। ठीक है, ओके, लेकिन उसके अंदर जो आपने नहीं पूछा हिस्ट्री के अंदर, जी जी एस्थमा के अंदर, वो जी, आपने ये पूछना था कि ये आपको इस ड्रग के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, सही, सेकेंडली ठीक है। उसके बाद आपकी कंडीशन कैसी है। मुझे दो हम्म दफा आपको बताना पड़ा कि योर योर पेशेंट इज स्टेबल। हम्म
ठीक ठीक है। है, आप उस सही। चीज को समझ नहीं पा रही थी कि आप जब उसकी मैनेजमेंट कर रही थी, वो बड़ी डिफरेंट हम्म तरीके से आप उसको लेके चली हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वाज ठीक योर है। गुड, वो ठीक है, आपकी स्पीड ठीक है। बहुत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस की टोन, दैट इज वेरी गुड। जी। ठीक है, ठीक है। बट द ठीक है। प्रॉब्लम इज कि आपने पिक करनी है, आप अब मेन चीज पिक नहीं कर पाई, आप उसको स्टीरॉइड्स की हम्म तरफ ले गई। सही ठीक है, बात तो है। आपको ड्रग्स के हम्म नाम, हम्म चीजें, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, और लेटेस्ट सही। क्या आ रहा है वो लेटेस्ट आपको पता हम्म, होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या चल रहा है आजकल। इनहेलर्स इस हम्म, तरह से नहीं चलते, ये कैप्सूल्स चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और इनहेलर बहुत रेयरली दिए जाते हैं, मोस्टली पेशेंट जो है इन्हीं के साथ जो है ना कैप्सूल्स हम्म, कॉम्बिवेयर्स के साथ जो है ना बेहतरीन चलते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। सही। दूसरा, जब उसको अटैक हुआ था आपने उसके अटैक की थोड़ी डिटेल नहीं पूछी, अच्छा। कि आप कितने दिन सही। एडमिट रही थी, आपको कौन सी ड्रग दी गई थी। ठीक है, वो आपने आपने हम्म, बोलना था। एग्जामिनर बताए ना बताए एक अलग बात है। ठीक है, बट अच्छा। आपने वहां पे सही। रहना, आई विल एक्सप्लोर द अटैक, हाउ मेनी हम्म डेज ही वॉज एडमिटेड, इज देयर आईसीयू रिक्वायर्ड, शी वॉज ऑन ऑक्सीजन डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट में उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट अस्थमा अटैक हुआ था, हम्म, स्टेटस एस्थमेटिकस हुआ था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपने अच्छा। फीटो मैटरनल इम्प्लीकेशंस बतानी थी, तो उसमें आपने बताना था कि चूंकि आपको अभी रिसेंटली स्टेटस एस्थमेटिकस का अटैक हुआ है, तो यू आर प्रोन दैट वन थर्ड ऑफ द केस इज इम्प्रूव्ड, वन थर्ड, हम्म तीनों में इसमें सेम बातें हैं। ठीक है, हम्म हम्म, ठीक है, सेम था, वन थर्ड जो होते हैं वो ठीक है। इम्प्रूव कर जाते हैं, वन थर्ड जो होते हैं वो जी। एग्रीवेट कर जाते हैं, और वन थर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके हाँ सामने ठीक ये है। लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम्म थेरेपी जो हमारे पास होती है वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, साथ में आप शॉर्ट ठीक है। एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। तो ये पेशेंट सही। स्टैंडर्ड कॉम्बिविर ले रही है, जिसके अंदर आपका, मैंने तस्वीर इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दी ताकि आपको कॉम्बिविर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, सही। तो ठीक है। उसमें बीटा एगोनिस्ट है, फेमटेरोल और बुदाइनिसिनोन है। ठीक है, तो ये आपने ठीक। उसको इनिशियली बताने हैं। ठीक है, ट्रिगर्स मैंने मैम आपको ये बता स्टैंडर्ड दी। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैडम, ये जो अभी आपने बोला कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो ये हम तो जो स्टेप 1 में देते हैं वो तो साबा देते हैं ना, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लेकिन एक स्टेटस तो एस्थमेटिकस इसको हो गया ना, तो ये तो स्टेप 2 पे वो ले रही होगी पहले साबा। ठीक है, यस शॉर्ट मैम। एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ले रही होगी, लेकिन इसको तो अटैक हुआ तो उन्होंने कॉम्बिविर दिया है ना। तो अब तो उसका सही स्टैंडर्ड वो मैम। हमने ठीक स्टेप है। 2 पे चल रही है, स्टेप अप उसको किया है ना। और स्टेप अप अभी यस वो विद मैम। इन 3 मंथ्स हुई है, यानी वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसको अटैक हुआ, तो 3 मंथ्स के बाद उसको रीएवेलुएट कर सकते हैं आप, कि आप सिर्फ उसको साबा पिल वापस ले जाएं। लेकिन चूंकि जब आप ये बात भी इम्पोर्टेंट इन्होंने बतानी थी उसको, कि आपका कॉम्बिवेयर के ऊपर अगर कंट्रोल है तो हम आपकी यही रिजीम चलाएंगे। अगर आपने ये जो आगे चार्ट इसके अंदर बना हुआ था ना, और आपने उसको फॉलो अप पे जब भी बुलाना है, आपने उसके सिम्टम्स को पूछना है, उसके रेस्पिरेटरी रेट को देखना है, उसकी चेस्ट को सुनना था। ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन हर ठीक है। फॉलो अप पे आपने उसको सुननी होती है। ठीक है, दूसरी बात ठीक ये, है। ठीक। ठीक है, इसमें तो उन्होंने बता दिया था। कुछ केस हम्म, कभी आता है जिसके अंदर सिर्फ सिम्टम्स दे दिए जाते हैं, नोन केस ऑफ एस्थमा नहीं दिया जाता, तो फिर आपने सही। ये जो डीडीज दी गई हैं इन डीडीज को भी रूल आउट करना है। आपने जी सही जी। बता दिया कि प्री क्लेम्शिया इसको हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, हम्म, इसमें कोई आपका सिजेरियन सेक्शन का उतना से प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मोड ऑफ डिलीवरी जो है आपका वो हम्म, नॉर्मल डिलीवरी ही होता है। तो ये जी जी। बेसिकली ट्रीटमेंट आपने उसको सुनाना है। आपका पेशेंट अभी यहाँ पर है, ठीक है, हम्म, उसको आपने इनहेल्ड ठीक है। स्टीरॉइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम्म, और साथ में उसको बीटा से वो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने सही। उसमें ये जो फिम्टेरोल है, ये जो है ये आपका लॉन्ग एक्टिंग में आ जाता है। ठीक है, तो वो पेशेंट अच्छा। पहले शायद इस पे थी, अब स्टेप 3 पे आप उसको ऊपर ले गए हुए हैं। ठीक है, पहले सही। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स पे, अभी अभी वो इनहेल्ड पे ही है, लेकिन ये कंबाइन इनहेल्ड आया हुआ है। ठीक है, इसमें जी लाबा ठीक भी है। है और इसमें स्टीरॉइड भी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो तो अब अगर आपने, हमें जाना होगा तो हम उसको स्टेप 4 का बताएंगे फिर, अगर हाँ, कोई हम सिवियर होता आपने है इस पे। अगर आपको हम्म प्रॉब्लम दोबारा से होगी तो हमें आपको दोबारा से
ट्रीटमेंट हम्म एडमिट कर, आपने उसको बताना है कि आपको रिपीटेड एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको हम्म जो है वो दोबारा से अटैक हो सकता है और एडमिशन करना पड़ हम्म सकता है। फिर हम आपको अगले स्टेप पे लेकर जाएंगे, स्टेप अप कर देंगे। आपके इनहेल्ड स्टीरॉइड्स को अभी आप 200 ले रही हैं, ये डोज पूछ रही हम्म, थी कितने मिलीग्राम ले रही हैं, हम उसकी डोज को स्टेप अप कर देंगे। उसके साथ उसको हम कोई ठीक। फोर्थ ड्रग जैसे मास सेल स्टेबलाइजर जिनको हम कहते हैं, ये जो आपकी हम्म मोन्टेलो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो जी जी हम ऐड जी। कर सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके साथ फिर हम आपको दूसरी ड्रग्स थियोफाइलिन को भी ऐड करना पड़ेगा। ये आपने मोटी मोटी बातें बतानी है। और आपने अच्छा अच्छा। पल्मोनोलॉजिस्ट का नाम लेना है, ठीक है। चेस्ट ठीक फिजिशियन है से ठीक। बेहतर वर्ड है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजी। ठीक तो ठीक। पल्मोनोलॉजिस्ट बेसिकली हमने करने, आपने वेरी स्टार्ट में एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। इट इज नॉट एन एनेस्थेटिस्ट, इट इज द ठीक ठीक। पल्मोनोलॉजी टीम एंड आईसीयू केयर टीम, ओके। कि अगर उसको स्टेटस ठीक है। एस्थमेटिकस होता है तो हमें शायद उसको हम्म आईसीयू केयर की जरूरत पड़े या पल्मोनोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े, ठीक है। सो वेरी स्टार्ट ठीक में है। आपको एनेस्थेटिस्ट नहीं बताना, और वेरी स्टार्ट हम्म में आपने उसको ये इंश्योर करवाना है कि 1/3 ये हम्म इम्प्रूव कर सकता है, 1/3 ये सेम रहेगा, और 1/3 एग्रीवेट हम्म आ जाएगा, हम्म, ठीक है। और सही ज्यादा है। एग्रीवेशन ओके। के चांस 24 to 36 वीक्स के दरमियान होते हैं, ठीक है। सही। ओके। सेकेंडली, जब आपने इसको डिलीवर करना है इंट्रापार्टमली, आपने इसको प्रॉप अप रखना है, आपने ऑक्सीजन की अरेंजमेंट रखनी है, ठीक है, ताकि अगर कभी अटैक इसको अच्छा होता है तो आपके पास चीजें अवेलेबल हों। इमरजेंसी ड्रग अच्छा अच्छा। लाइक थियोफाइलिन विल बी अवेलेबल। और ये आपने बताना है उसको कि जी थियोफाइलिन प्रेगनेंसी में सेफ है, जी ठीक है। ठीक है तो सही है। सेफ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में आपने उसको जुमला जरूर बोलना है कि कैप्सूल हम्म कॉम्बिविर आप ले रही हैं, दिस इज अ हम्म सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, यू कैन कंटिन्यू इट, हम्म, ठीक है। ठीक 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 है। सो आपने सेफ्टी ऑफ ड्रग जो वो ले रही है उसको इंश्योर करना है, ठीक है। जी ठीक यस, है। आप सही। इनहेल के साथ फिर यूजली रिस्क ऑफ डायबिटीज नहीं होता, ठीक है। अच्छा ठीक। ओरल के साथ होता है ज्यादा, ठीक है। और जी ओरल जी के ठीक। अंदर हम यही देते हैं, प्रेडनिसिलोन, ठीक है, डेल्टा जी जी ठीक कॉर्टेल, है ये ठीक। वाली ड्रग्स आती हैं ओरल। वो असल में मेरा सारा वो चेंज हो गया ना, मैं उसको हाँ, प्रेडनिसोलोन आपको समझ के एक्चुअली वही ओरल मैंने आपको समझ बताया के। ना, बज वर्ड वाज द जी कॉम्बिवेर। जो आपको जी अगर जी जी बिल्कुल। पता नहीं था तो फिर आप उसको नहीं वो सारा सही गलत हो करना, जाएगा। सारा गलत हो जी जाएगा। तो यू मस्ट नो द जी जी। ड्रग्स कि ठीक है। कौन सी इनहेल्ड है, इनहेल के अंदर जी आजकल क्या ठीक है। प्रिपरेशन दी जा रही हैं। फॉस्टर जी ठीक इनहेलर है। यूजली दिया जाता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। हम्म, उसके बाद सालबिट वेंटोलिन दिया जाता है, ठीक, जिसमें सालब्यूटामॉल होता है, ठीक है, टर्ब्यूटालिन के दिए जी जाते बिल्कुल। हैं, ठीक है। तो ये वाले सही है। आपको कुछ चंद एक नाम पता होना चाहिए कि क्या दिया जा रहा है इस्तेमा के अंदर, ठीक है। जी सो वो ठीक है। सिंपली यू कैन सर्च के सालब्यूटामॉल के अंदर का नेम कौन सा आ रहा है, वेंटोलिन में क्या आ रहा है, ठीक है। सो ये आपको सही। पता होने चाहिए, ठीक है। जी ठीक फॉर्मेटिरोल है। लाबा में है, ठीक है, ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है इसीलिए, ठीक है। और हर दफा में आप उसको उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट को देखेंगी, उसके ग्रोथ स्कैन करवाएं, हम्म ठीक है। उसके ग्रोथ हम्म, स्कैन करवाएं, वो आपने नहीं करवाए, ठीक है। और जी जी। इसके अलावा आपने उसका हीमोग्लोबिन, वो आपने बोल दिया था कि मैं उसकी जो है वो टॉनिक्स और वो ऐड करूंगी, ठीक है। ट्रिगर्स जी आपने ठीक है। उसको बता दिए थे कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें, ठीक है। जी ये दैट सेम हो पेशेंट गया था। सेफ्टी पॉइंट्स हैं, ठीक है। जी ठीक है। ये कि अगर आप ट्रिगर्स के बारे, लेकिन ये आपने बताए थे। सो ओवरऑल जी परफॉर्मेंस वाज गुड, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी हुई ना, वो कॉम्बीवेयर की वजह जी से थोड़ा सा आपका जी जी। गलत हाँ हो गया, ट्रैक ठीक है। चेंज हो गया। हाँ हाँ, ट्रैक चेंज हो गया ना। हम्म, सो इसलिए जी। हम बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स पे जाते भी नहीं है, क्योंकि स्टीरॉइड्स के अपने हम्म, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जी तो मैं सही। इसलिए साथ साथ आपकी ये गुजार रही हूँ ताकि आप लोग इसमें देखते जाएं कि थियोफाइलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। जो कि हम जी इसमें सही। देते हैं तो वो सेफ होती है, ठीक है। इसके बाद जो ठीक। ओरल स्टीरॉइड्स होते हैं वो क्लेफ्ट लिप्ड और इस तरह की चीजें करवाते हैं, तो यूजली हम वो लास्ट स्टेज पे या एक्यूर या लाइफ थ्रेटनिंग एक्सासर्बेशन हो जाए तो फिर हम देते हम्म हैं, लेकिन ये आपने सब बातें उसको बतानी है, ठीक है। और ये ठीक जो सही। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर होते हैं, जैसे ये मोन्टुलो कास्ट है, ये भी सेफ हम्म होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ये भी हम दे सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर इसको कहते हैं, जिनके अंदर एलर्जिक होता है ना, हम्म, एलर्जी की हिस्ट्री हो तो वो हम जी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सही। एंटी आईजीई जो थेरेपीज आई हुई हैं आजकल एस्थमा की, वो नहीं दे सकते। इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोस्प्रेसेंट थेरेपी जो है ना, वो नहीं हम्म दे सकते,
ठीक। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो एंटी-IgE की फॉर्म में हो, या ये हम्म, जो मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेट, ये नहीं दे सकते। ठीक है, ये सही। तो वैसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, ठीक। सपोर्टिव ट्रीटमेंट फिर हम उसको देंगे। अच्छा, लेबर के अंदर इम्पोर्टेंटली ये था कि आपने प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देनी, जी। जरूर बताना है। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ठीक थर्ड है। स्टेज ऑफ लेबर करें, लेकिन हम्म, प्रोस्टाग्लैंडिन अवॉइड्स करें। ठीक है, तो हाँ जी, इंडक्शन, ये बताया मैंने आपको। हाँ ये आपने बताया। ठीक है, बाकी जी। जितनी भी ड्रग्स अस्थमा की होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टमार्टमली सेफ होती हैं। ठीक है, और जी ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव सर। भी सारे सेफ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सही। ठीक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इसके अंदर सब चीजें बतानी है। मैंने इसीलिए टोग आर्टिकल आपके सामने से गुजारा, ताकि आपको एक दफा जी सारा जी। पता चल जाए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपने करनी। ओवरऑल आपने परफॉर्म ठीक है, बस वो एक मिस्टेक होगी कि आपको कॉम्बिवीर का पता नहीं जी था, अदरवाइज पता नहीं आपने था। सारा अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू। तो अगर एस्थमा से रिलेटेड और किसी की कोई क्वेरी है, क्योंकि एस्थमा एक दफा ही आया हुआ एग्जाम में, को बहुत ज्यादा रिपीट जी नहीं हुआ, तो इतना बहुत बस ये टॉक आर्टिकल कर लें और ये चार्ट कर लें, और ये आज वाला जो स्ट्रक्चर डिस्कशन हुई है इसी तरह ही आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, जी ठीक। एक्चुअली ये मैं मेरे सही। पास टॉक्स में से ही उठाया था आज। ठीक 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 है, सही। इसकी अगर जी की आपने देखनी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो उसके एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस थी, शायद आपको नजर आ रहे थे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के 2 नंबर थे, और कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और फैमिलीज के 1 नंबर है, पेशेंट सेफ्टी के 2 नंबर हैं, और जो अप्लाइड ये पूरा चार्ट जो आपने सुनाना था और जो उसको काउंसिल एंटीनेटल हम्म, लेके चलना था, वो उसमें ये पूरा टोग आर्टिकल ही सुनाना होता है बेसिकली, हम्म, जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक। सो इसके ठीक। 5 नंबर हैं आपके। ठीक है, हम्म। ओरिजिनल की ये थी, ये देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन, पेशेंट सेफ्टी का इधर 1 नंबर है, वैसे 2 नंबर होते हैं, अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के 4 नंबर हैं। ठीक है, दिस ठीक। वाज द ओरिजिनल टॉक, ओरिजिनल की। ठीक है, चलें, जी सही। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्थमा? हम्म, कोई क्वेरी है तो पूछ लें ताकि हम आगे चलें फिर, क्योंकि आगे अभी हमने 2 करने हैं एपिलेप्सी के, एक काउंसलिंग है और एक हमारा। मैम, ये अगर पेशेंट हमारे पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अगर आज सिस्टमेटिक पेशेंट, तो उसकी काउंसलिंग फिर हमें किस तरह करनी होगी कि अगर लाइक यही सारी अपॉइंटमेंट बीच बातें में आप कुछ। करेंगी कि आप ठीक है। पहले उसकी हिस्ट्री लेंगी कि आपको अस्थमा कब से है, आप उसके लिए क्या दवाइयाँ ले रही हैं। पहले तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरतलैन है, मैं जो भी वो भी मैंने काउंसलिंग एपिलेप्सी के ऊपर वाले पोर्शन की भेजी है ना, वही वाला सारा कुछ आपको अस्थमा में। आप मुझे बताया गया कि आपको को शादी को 6 माह हुए हैं और आप हमल करना चाहती हैं, तो आपको दमे का प्रॉब्लम है, क्या ऐसा ही है? अच्छा, आप दमे आपका मसला आपको कब से है, उसके लिए आप क्या दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इस पे आपका कंट्रोल है, दवाइयों की डिटेल ज़रूर पूछनी है। और आपको ठीक आखिरी है। अटैक कब हुआ था, क्या आप अपने दमा वाले डॉक्टर को बाकायदगी से चेकअप करवा रही हैं, उन्होंने आपको कहा है कि आपकी डिजीज कंट्रोल है, अब आप हमल कर सकती हैं। अ, तो मैं आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी देखना चाहूंगी। अच्छा, आपका हमल अगर आपके डॉक्टर ने इजाज़त दी है, आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल, आप कॉम्बिविर ले रही हैं, ये दवाइयाँ आप लें, इस पे कंट्रोल्ड है आपका, आप हमल करना चाहे तो कर सकती हैं। खुद ब खुद हमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करें, अगर हो जाता है, अगर हमल होगा तो हम शुरू के 3 महीनों में आपको फौलाद की गोलियां देंगे, आपका शुरू में एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर आप ये कैप्सूल कॉम्बिवेर पे आपका कंट्रोल रहता है तो ये आप पूरे हमल में ले सकती हैं। हमल के दौरान दमे का मरीज 1/3 जो होता है, 1/3 मरीज जो है वो 25% कर लो इसको, कि 25% नॉर्मल रहते हैं, 25% का दमा एग्रीवेट हो सकता है, 25% को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हम आपका एक OGTT का टेस्ट करवाएंगे 14 14 हफ्ते पे, अगर वो नॉर्मल हुआ तो 28 हफ्ते पे दोबारा कराएंगे। आपके बच्चे की साख्त का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हम दमा की वजह से हमल पे और माँ पे और बच्चे पे दोनों पे असरात हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, आपको टाइम वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। दमे का मैंने आपको पहले बता दिया कि 25% नॉर्मल हो सकता है, और वो बच्चे के ऊपर जो है, बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है, बच्चे की ऑक्सीजन कम हो सकती है।
वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। हम आपकी बच्चे की ग्रोथ को 24 हफ्तों के बाद बाकायदगी से चेकअप करेंगे। हर महीने आपको बुलाएंगे, जिसमें हम आपकी छाती का मुआयना करेंगे, आपके सांस की वो रफ्तार को देखेंगे, आपके 28 हफ्तों पे 32 हफ्तों पे बच्चे की ग्रोथ का स्कैन करेंगे। आप नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकती हैं, बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं कॉम्बीवीर के साथ ही, अगर आपका चलता है तो हम आपको बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर करेंगे। अगर बीच में आपको कभी मसला हुआ तो हम बीच में कुछ और अद्वियात आपको शामिल करेंगे, जिसमें ओरल दवाइयाँ भी हो सकती हैं, इनहेलर भी हो सकते हैं। थियोफाइलिन नाम की एक गोली इनहेलर होते हैं वो हम, और इंजेक्शन होते हैं वो भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको कुछ अद्वियात होती हैं जो हम आपको नहीं दे सकते, जैसे एंटी आईजीई होते हैं और इम्यूनोस्प्रेसेंट कुछ होते हैं, वो हम नहीं दे सकते। बट आपकी जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के दौरान हम अपनी लेबर केयर गाइड होती है उसको फॉलो करेंगे, आपकी एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन नाम की एक गोली होती है वो हम आपको नहीं दे सकते। और बच्चे को पैदाइश के बाद उस बच्चे के डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे रोक के पूछ सकती हैं। बच्चे की डिलीवरी के बाद हम आपको वक्फे का मुनासिब तरीका बताएंगे, जिसमें सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैम। और मैम इसमें अगर ये जो थियोफाइलिन जैसे ये कॉम्बीवीर वाली जो कैप्सूल मतलब इनहेलर है, अगर इस पे पेशेंट ऑलरेडी मतलब जैसे हमारा ये वाला पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इज दिस ड्रग सेफ फॉर यस लाइक यस, ये सब ऑर्गेनोजेनेसिस? सेफ है। जी जी, सेफ है। ओके मैंने कहा इनहेलर शायद फर्स्ट सेफ है। ट्राइमेस्टर में। इनहेलर्स ओके का कोई इशू नहीं होता, ओरल से प्रॉब्लम होती है, राइट मैम, थैंक यू मैम। क्योंकि वो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होती ना, वो सिर्फ एल्वेलाई के लेवल पे होती है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलें। ओके, नेक्स्ट अब किसने करना था? मदीहा ने एपिलेप्सी। मदीहा है? जी डॉक्टर कुरत। जी जी, मैं हूँ डॉक्टर कुरत। चलें, आपका सिनेरियो मैं देती हूँ, ठहरे। प्री आपकी प्री काउंसलिंग है ना? जी जी जी। जी। 32 लिख लीजिए, 32 years ऑफ एज। 2 और मेरी years of स्क्रीन age। स्टक हो गई है ना, अब चल नहीं रही है। थर्टी टू जी जी ईयर्स ऑफ एज। जी जी। ग्रेविडा 2 पैरा 1। ग्रेविटी 2 पैरा 1। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। Alive and healthy baby of 2 years. जी ठीक है। She is she is known case of epilepsy. जी जी Taking tablet valproate 50 milligram OD जी जी ठीक है। and bromazepam at night. ठीक है। And she wants to conceive now, as her last child born is ओके 2 years old. She came for ठीक है। pre-pregnancy counseling. This is a ठीक role है, play 32 years station. Role ठीक है। play is sitting ओके in front of you. ओके Your time starts now. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदीहा है और मैं गुज़िश्ता 4 साल से शोबा गायनी से मुंसलिक हूँ। मुझे आपके मतलब एक तहरीरी नामा वसूल हुआ है जिसमें आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जो है वो शाइस्ता है। शाइस्ता। शाइस्ता, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 32 साल है। 30 साल है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है कि आप अपनी सेहत के बारे कुछ मसला डिस्कस करना चाहती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, एक मिनट, मैं स्टॉप कर रही हूँ। मुझे जी ये जी। बताया गया है कि आपको मिर्गी का मसला है और आप कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं, और अब आपका एक बच्चा है जो कि ऑपरेशन से हुआ था, अब आप हमल दोबारा करना चाहती हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? ठीक है। अच्छा, वो सारा सिनेरियो, ठीक है हाँ, ठीक है सिनेरियो ठीक है। रिपीट करना है ताकि पेशेंट रिपीट करना है। एग्जामिनर को बताना है ना कि मैं क्या पूछना, मैं इंफॉर्मेशन गिवन टू मी। आप क्या कर रही हैं ये जुमला बोल के? आप बेसिकली वो कर रही हैं, कंफर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन, एंड दिस इज द ठीक है पेशेंट ठीक है। सेफ्टी पॉइंट। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है तो एक वेग सी ठीक जुमला है नहीं बोलना। चले, मैं रिज्यूम कर रही हूँ, आपका ठीक है टाइम दोबारा बोलें। ठीक है
ठीक है। अच्छा, शाइस्ता, मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 32 साल है और आपका एक बच्चा है और आपको मिर्गी का मर्ज 5 साल से है, और जिसके लिए आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं और आप इसके बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा, शाइस्ता, हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। मैं आपसे चंद सवालात करूंगी ताकि आपके लिए बेहतर इलाज पेश कर सकूं। जैसा कि आपने बताया, आपको इसका मसला 5 साल से है और आपने बताया कि आप इसके लिए वेलप्रोएट ले रही हैं गोली और ब्रोमेज़ेपाम। अच्छा, ये आप दवाइयाँ जो है ये रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं? जी डॉक्टर साहबा, रेगुलर कर रही हूँ मैं इस्तेमाल। अच्छा, इन दवाइयों से आपका झटका कंट्रोल रहता है? जी डॉक्टर साहबा, मैं ये अपने बेटे के बाद से ले रही हूँ, 2 साल हो गए हैं, तो तब से मैं ले रही हूँ, तो ठीक हूँ इससे। अच्छा, ठीक है। आपको आखिरी दफ़ा झटका कब लगा था, कुछ याद है? मुझे आखिरी दफा झटका जो है वो डॉक्टर साहबा लगा था बेटे की पैदाइश से पहले। अच्छा, उसके कंसीव करने से पहले या हमल के दौरान लगा था, नहीं बीच नहीं, में, एंड हमल से पे? पहले लगा था डॉक्टर साहबा। अच्छा, पिछले हमल से पहले आपको झटका लगा था, उसके तकरीबन बाद से कुछ मैं अरसा ये याद है? वेलप्रोएट और प्रोमेज़िपम ले रही थी, तो मेरा कंट्रोल था। हमल में उन्होंने मेरी थोड़ी दवाई तब्दील की थी, लेकिन अब मैं ठीक ठीक है। हूँ। अच्छा, ठीक है। आखिरी दफा आपने इसके लिए डॉक्टर को कब चेक करवाया है, झटके वाले डॉक्टर को? डॉक्टर साहबा, मैंने नहीं चेक करवाया, बस मैं दवाइयाँ खाती जा रही हूँ, अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने फिर किसी को नहीं चेक कराया। अच्छा, मिर्गी के मसले से कभी आप हॉस्पिटल दाखिल हुई? बेटे से पहले ही हुई थी डॉक्टर साहबा, अभी तो नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, तो उस लिए कितने दिन दाखिल रही थी, कोई आपको आइडिया है? मुझे कोई तो नहीं दवाइयाँ डॉक्टर वगैरह साहब इस चेंज तरह की हो याद, डॉक्टर लेकिन ने घर आपकी? वाले कहते हैं कि 2 दिन अच्छा। रही थी मैं बेहोश। अच्छा, सही है। अच्छा, कोई आईसीयू वगैरह में एडमिशन तो नहीं हुआ था? नहीं डॉक्टर साहबा, नहीं। अच्छा, आपको कुछ बता सकती हैं आपकी इस बीमारी ने आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासर किया है? डॉक्टर साहबा, अभी तो मैं ठीक चल रही हूँ, अभी तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो मुझे कोई ठीक है। मसला नहीं हो रहा। ठीक है। अभी आपने अपने दिमाग वाले डॉक्टर से मशवरा किया हमल के लिए? दोबारा रिपीट कर रही है, पेशेंट ने बता दिया, मैंने नहीं ठीक है। दिखाया। अच्छा, वक्फे के लिए तो कोई तरीका नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं। अच्छा, आपके खामद को तो मिर्गी का मसला नहीं? नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको या आपके खानदान को कोई बीपी शुगर का मसला हो या मिर्गी का मसला हो खानदान में किसी को? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, माहवारी ठीक आती है आपको, महीने के महीने आती है? जी डॉक्टर साहबा, ठीक आती है। ठीक है। आखिरी दफा कब आई थी, बता सकती हैं? डॉक्टर साहबा, अभी 15 दिन पहले आई है। ठीक है। अच्छा, बच्चेदानी के मुंह से शीशे वाला टेस्ट हुआ कभी? नहीं डॉक्टर साहबा, ये ना थोड़ा सा शॉर्ट इसके करें अलावा हिस्ट्री को, शॉर्ट केस वाली हिस्ट्री ठीक है। यहाँ ना लें। बस आपने अभी काउंसलिंग भी ठीक है। करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई एलर्जी वगैरह का मसला तो नहीं है, कोई दवाई इसके अलावा इस्तेमाल करती हूँ? नहीं डॉक्टर साहबा, यही बस कभी इस्तेमाल कोई कर। ऑपरेशन हुआ? बच्चे और वाला बच्चे के ऑपरेशन। ऑपरेशन के अलावा कुछ? ठीक बच्चे है। वाला ही ऑपरेशन ठीक हुआ है। था बस। ठीक है। कोई ज़हनी तनाव का शिकार तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा। अच्छा, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आप अपने मसले के लिए तशरीफ़ लाई हैं। देखा ये गया कि डॉक्टर के मशवरे से अमल हो तो मिर्गी वाले मरीजों में पेचीदगियाँ कम होती हैं। अच्छा, मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना भी करूंगी, और सबसे पहले इसके लिए हम आपको दिमाग वाले डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे। वो या तो आपकी अद्वियात तब्दील कर देंगे, जैसे कि आप 2 ड्रग्स ले रही हैं तो आपको किसी एक दवाई पे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि एक दवाई जिसको मोनोथेरेपी कहते हैं उससे जो है वो बच्चे में नकाइस जो है वो कम से कम होते हैं। और इससे ना आपकी मिकदार दवाई की कम से कम रखी जाएगी, जिससे आपका झटका कंट्रोल हो। और जो सोडियम वेलप्रोएट है, इसको हम कोशिश करते हैं कि हम 8 से 14 हफ्ते के दरमियान हम इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे बच्चे में नकाइस का रिस्क जो होता है ना वो 10% होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहबा, मुझे आ रही है नंबर। अच्छा। अच्छा, हमल के दौरान भी आपने जो है ना वो कोशिश करना है कि आपने जो है ना वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपनी नींद पूरी रखनी है, और जो स्ट्रेस है जैसे परेशानी, उससे आपने परहेज करना है। हम हर 2 हफ्ते बाद आपको चेकअप के लिए बुलाएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपके बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ देखेंगे, आपका जो है ना वो ब्लड प्रेशर चेक होगा, और देखेंगे कि आप दवाइयाँ ठीक तरीके से खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। 18 से 20 हफ्ते पे हम आपकी जिस्मानी साख्त वाला अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि ये अद्वियात बच्चे में नुक्स पैदा करती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में नुक्स, दिल की साख्त और चेहरे की साख्त में नुक्स, और बच्चे को भी मिर्गी हो सकती है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मिकदार में दवाइयाँ ले रही हैं। 28 हफ्तों से हम आपके ग्रोथ स्कैन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमल के दौरान भी आपने झटके से बचने के लिए ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, आपने अकेला नहीं रहना, और कोशिश करनी है घर
कोई आपके साथ हो। फिर हम 36 हफ्ते पे बुला के आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, आवल की लोकेशन को देखेंगे, और हमारा मकसद ये होगा कि आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? जी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा पहला बच्चा तो ठीक ऑपरेशन है। से हुआ था, तो क्या अभी नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, अभी जो है ना वो अभी जो है ना वो, अगर आप जैसे 2 साल का अरसा हो चुका है तो हम कोशिश कर सकते हैं आपको जो है ना वो 1-to-1 केयर के साथ, अगर सारा कुछ ठीक रहता है, बच्चे की आवल की पोजीशन ठीक है, उसका पानी ठीक है, और आपको कुदरती लेबर पेन्स अगर स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर जो है ना वो आपका चांस बढ़ जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का। लेकिन अगर आपके बच्चे की धड़कन मुतासिर होती है, कोई आपको झटका लगने का खतरा होता है, या कोई भी इमरजेंसी पैदा होती है, उस सूरत में फिर हम आपका ऑपरेशन भी कर देंगे। और हम आपकी जो लेबर है वो लेबर केयर गाइड के मुताबिक मॉनिटर करेंगे। और अगर आपको लेबर्स लग जाती हैं तो फिर हम आपको जो है ना वो मुसलसल आपके बच्चे की दिल की धड़कन चेक होगी। लेकिन इसमें ना आपके केस में अच्छी बात यह है कि आपके जो है वो झटका पड़े हुए काफी अरसा हो चुका है, और उसमें देखा गया कि 90% जो है ना वो आपको हमल में झटका नहीं पड़ेगा, और तकरीबन इतना 96% बच्चा आपका ठीक रहेगा। ठीक है। और हमल से पहले भी आपके जो है ना वो ब्लड में दवाइयों की मिकदार हम चेक करते रहेंगे। आपको हम फॉलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमल हो आपने फौरन आके जो है ना वो बुक हो जाना है। मायरीन डॉक्टर की टीम जो होगी वो आपको इलाज के लिए मौजूद होगी। और चूंकि हमल में दवाइयों का इखराज ज्यादा होता है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से ना हम आपकी दवाई को बढ़ा देंगे। और हमल के शुरू में कुछ आपके टेस्ट होंगे, और उसके अलावा बच्चों की तारीखों वाला अल्ट्रासाउंड होगा, गर्दन की मोटाई वाला अल्ट्रासाउंड होगा। और उसके बाद जो है ना वो हम लेबर डिलीवरी के बाद भी कोशिश करेंगे ऐसी अद्वियात अद्वियात का इस्तेमाल करें जिनसे कम से कम आपको खून पड़े। डिलीवरी के बाद हम बच्चे को जो है ना वो बच्चों वाले डॉक्टर को देंगे, और झटकों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दुरानिया जो है वो लेबर में और उसके बाद 1 से 2% बढ़ जाता है। और बच्चे को हम इंजेक्शन विटामिन के देंगे। और उसके बाद जो है ना हम आपको डिलीवरी के बाद वक्फे के तरीकों के बारे में बताएंगे, घर जाके भी आपने। सॉरी। जी मधिया, आपका टाइम भी, आप वहां पे थी कि हम डिलीवर कर रही थी अभी? जी जी। डिलीवरी के दौरान झटके का रिस्क 1 से 2% बढ़ जाता है, और डिलीवरी के बाद भी 1 से 2% चांस बढ़ जाता है झटके का। और डिलीवरी के दौरान आपको ऐसी अद्वियात दी जाएंगी जिनसे आपको कम से कम ब्लीडिंग हो। हम बच्चे को बच्चे वाले डॉक्टर के हवाले करेंगे, उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाएगा, और बच्चे को अद्वियात के असरात के लिए देखा जाएगा। डिलीवरी के बाद हम आपको वक्फे का मुनासिब तरीका बताएंगे। आपने घर जाके भी प्रॉपर दवाई लेनी है, और प्रॉपर रेस्ट करना है, नींद पूरी करनी है, और बच्चे को फर्श पे बैठ के दूध पिलाना है, और कोशिश करनी है कि आप अकेले मत रहें। 10 दिन बाद हम दवाइयाँ रिव्यू करने के लिए आपको दोबारा बुलाएंगे, और न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से अगर डोज चेंज करनी पड़ी तो वो करेंगे। और अगले हमल भी आपने डॉक्टर के मशवरे से करना है, और जो है ना वो आपको स्टार्टिंग से फॉलिक एसिड दिया जाएगा। और अगर फॉलिक आप एसिड मजीद कुछ पूरी पूछना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में पूछ लें। दिया जाएगा ना? ये पूरी प्रेगनेंसी में दिया जाएगा। जी जी। हम्म। ठीक है। तो डॉक्टर साहबा, वक्फे के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, अगर अभी जैसे कि आपके 2 बच्चे हो जाएंगे तो आप लंबा तरीका वक्फे का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो हम आपको लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें कॉपर आईयूसीडी है, ये हम आपके बच्चेदानी में रख सकते हैं। और उसके अलावा एक और डिवाइस होती है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, उसको मायरीना बोला जाता है, वो भी रख सकते हैं, और इंजेक्शन भी लगा सकते हैं आपको वक्फे के। ठीक है। ठीक है। एंड कैसे करेंगे? एंड भी तो करें ना? एंड पे रोल मैडम मैंने उससे पूछा क्या? जी, अगर नहीं, रोल प्लेयर का, नेक्स्ट रोल प्रेगनेंसी प्लेयर का की बताया उसको। एंडिंग, रोल प्लेयर की एंडिंग ये होती है कि आप अगर आप, ये हमारी पहली मुलाकात है, अगर आप दोबारा इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो इसकी बीमारी के मुतालिक ये किताबचा आप इसको पढ़ भी सकती हैं। इस पे हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर भी हैं, आप उनसे भी राब्ता कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। इसकी एंडिंग्स रोल प्लेयर की ऐसे, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं आप पूछ लें, सवाल ये करें, और उसके बाद एंड में आप उसको इंफॉर्मेशन लीफलेट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, किताबचा प्रोवाइड करना है। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। और फॉलिक एसिड आप भूल गई थी, आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी देना है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस जो वेल्प्रोएट या इस तरह की एंटी एपिलेप्टिक्स दे रही है ना, तो उसके अंदर जी आपने जी। फॉलिक एसिड होल ऑफ प्रेगनेंसी देना होता है। ठीक है। गुड अटेम्प्ट है। ठीक ठीक है। है। जी जी वेल्प्रोएट को जी जी। आपने कब बताना है? आपने उसको सेफ ड्रग्स, पहले आपने इंफॉर्मेशन ले ली, कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि पैप स्मीयर जी हुआ जी ये वो, जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप जी ऑब्स्टेट्रिक को जी भूल जी रही थी, ऑब्स्टेटिक जी जी हिस्ट्री ले नहीं रही थी, पैप स्मीयर पे आ रही थी, कोई जी सिजेरियन के जी दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ था, झटका तो नहीं लगा था,
पिछले हमल में आपने, उसने कहा भी कि मैंने दवाई चेंज की, आपने पूछा ही नहीं कि कौन सी दवाई चेंज हुई। ठीक है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ठीक है। हिस्ट्री की बातें पूछनी थी। आप हालांकि मैंने आपको डाइवर्ट भी की है कि ऑप्स की पूछें, तो पिछली प्रेगनेंसी पूछें। उसने हम्म। कहा कि मेरी, उन्होंने, मैं पहले भी ठीक ठीक। वेलप्रोएट ले रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरी ड्रग चेंज की, तो पूछे क्या ड्रग ली। उसको लोरेजी ठीक फार्म है। शुरू करवाई गई थी पिछली प्रेगनेंसी में। ठीक है, जिसपे उसकी पूरी प्रेगनेंसी ठीक रही थी। वेलप्रोएट तो सही उन्होंने सही। प्रेगनेंसी के बाद दोबारा शुरू करवाया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो उस ये बात आपने उसको पूछनी, उसको जी, बतानी ये मेरे होती से है। रजिस्टर नहीं हो सकी ये वाली बात ना जी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो रजिस्ट्रेशन करनी है ना आपने बात, वो जब हिस्ट्री दे रही है तो हिस्ट्री को सुन के फिर इंटरप्रेट करना है और फिर उसको चलाना है उस टाइम पीरियड में। ये नहीं कि मैंने जो काउंसलिंग पढ़ी हुई है मैं वो सुना दूं। ठीक है। ठीक है। तो आपने उसको भी जी जज करना है, और फिर आपने वैसे भी ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री तो लेनी है ना। अब जी। आपने जी अपना टेम्पलेट हिस्ट्री का छोड़ा है ना, उसमें से आपने जी। ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री स्किप की है, तो आप मिस कर ठीक है। गई बातें। तो टेम्पलेट कभी भी ना छोड़िए। ठीक है। ठीक है। और चूंकि वो पेशेंट प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में आई है, तो इन्वेस्टिगेशन का जिक्र नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन आपकी सही। काउंसलिंग में आ जाएगी कि हम आपकी ये टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। और अब ठीक है। एंटीलेप्टिक ड्रग्स के लेवल नहीं करवाए जाते। ठीक है। सीरम लेवल्स। हाँ, हाँ, सीरम लेवल में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसलिए ये मैंने टॉक आर्टिकल खोल लिया ताकि हम इसको जल्दी जल्दी से एक रिव्यू भी दे लें। अच्छा, हिस्ट्री में आपने पास्ट हिस्ट्री उसकी ड्रग्स की लेनी है कि जी आपने क्या लिया, फिर आपने जब उसको सुनाना, अब मैं आपको आपकी डिजीज के मुतालिक सारी बातें बताऊंगी। अप्रिशिएट कर लिया, गुड। वो पॉइंट आपका अच्छा था कि आपने उसको अप्रिशिएट किया कि तुम प्री प्रेगनेंसी, लेकिन चूंकि वो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया नहीं हुआ था, तो उसने कहा था हमारी माहिर डॉक्टर की टीम आपकी हमल के दौरान आपकी देखभाल करेगी। ये जुमला करना है, जिसमें हमारे मिर्गी के डॉक्टर होंगे, हम, मैं खुद होंगी एज अ गायनी स्पेशलिस्ट। ठीक है। और साथ में हमारी स्पेशल मिडवाइफ्स होंगी। ठीक है। और उसके बाद आपने उसको, इस पेशेंट को बिल्कुल अच्छा है, प्रेगनेंसी में भी आपने टेक केयर का बताना है, अकेले नहीं रहना। हाउस होल्ड हेल्प के बारे में बताना है, आपके पास कोई ना कोई बंदा हर वक्त होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल में जा सकें। इमरजेंसी नंबर आपके पास अलर्ट होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छा जिक्र कर देती जी हैं, तो अगर आपका एपिलेप्सी कार्ड आपके पास है तो वो आप हर वक्त अपने साथ रखें, ताकि किसी वक्त अगर किसी जगह पे आपको दौरा पड़े तो हमें कार्ड से आइडेंटिफाई हो सके कि आपको ये है। ठीक है। और फिर आपने क्लियर कट बताना है, हमल में कुछ असरात मिर्गी की वजह से होंगे, कुछ असरात मिर्गी की दवाइयों की वजह से होंगे। ठीक है। सो ये आपने दो अलग अलग बातें इसमें करनी है। ठीक है। जी। ठीक। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कुछ इसके अंदर चार्ट्स हैं जो ये वाले आपने रट्टे लगाने हैं। ठीक है। ये देखो, ये जो डिस्कशन इन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है, टेबल 2 एज इट इज सुना दो तो बहुत अच्छा है, और आपने सुनाया है ये सारा। ठीक है। आप देखो ना, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन एपिलेप्सी और फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंदर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ड्रग्स कितनी यूज होती है। वो आपने बता दिया कि मोनो थेरेपी आपने यूज करनी है। ठीक है, वो आपने अच्छा बताया। आपने वेलप्रोएट को भी शुरू में शिफ्ट करवाया, सिर्फ फॉलिक एसिड आपसे मिस हुआ, तो फॉलिक एसिड को आपने मिस कर। अजान, अजान बेटे, अजान। बस मैंने कहना है बाहर नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो सेफ ड्रग्स हैं उनके नाम जरूर लेने हैं। ठीक है। और वाइवा क्वेश्चन बीच में वो पूछ सकते हैं, ये वाला जो पिछली एक एक उसमें उन्होंने पूछा भी था। ठीक है। आपने ट्रिगर्स की भी बात की, नींद का आपने बहुत ज्यादा जिक्र किया, लेकिन नींद से ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस और जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है। और अपनी दवाई आपने बाकायदगी से खानी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस के लिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। अच्छा। और सॉरी। हाँ, बच्चे के ऊपर आपने फैक्ट बिल्कुल सही बताए, ठीक है। सो इट इट इज मतलब आपने अच्छी अटेम्प्ट थी, लेकिन थोड़ी बहुत बातों को अगर इम्प्रूव कर लें तो वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। एंडिंग जरूर करनी है। 0.25 एंडिंग के मार्क्स हैं, 0.25 स्टार्ट के मार्क्स हैं। मैं देखती हूँ अगर मेरा वो प्रेगनेंसी विद एपिलेप्सी का खुल गया तो ये देखें। ये देखो, ये सवाल है। व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डू यू नीड फ्रॉम दिस पेशेंट, ये हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है। उसमें आप डिटेल ऑफ डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकेशन, मोनोथेरेपी है, पॉलीथेरेपी है, न्यूरो, ये सब बातें आपने की हैं। साथ में कोई और बातें तो नहीं है, हैबिट्स क्या है, मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के स्टेप्स 3 मार्क्स के हैं। क्लिनिशियन को इन्वॉल्व करना है आपने। कंजेंटल मेल फॉर्मेशंस को आपने बताना है कि जी डोज पे डिपेंड, ये सब आपने बताया है, ठीक है। वेलप्रोएट को आपने बताया कि वो नहीं देनी, ठीक है। और उसको 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड को बनाना है। विजिट्स आपने बताने हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड है तो ये श्योर भी उसको करना है, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन, रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे मैंने अभी लीफलेट आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरह मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूरो फिजिशियन का जिक्र जरूर करना है, ठीक है। अपनी दवाइयां आपने बंद नहीं करनी है, ठीक है। विटामिन के का जिक्र करना है कि वो 36 पे देना है। अच्छा, ये जीटीजी मना करती है अब, लेकिन नाइस कहते हैं और टोग आर्टिकल कहता है कि देना है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोवर्सी है, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने इसको पेन एंड पेन के लिए आपने एंटानॉक्स या टेंस या गुड हाइड्रेशन, ये बातें देनी है। एपिड्यूरल भी इनको दिया जा सकता है। और एक जो चीज आपने बतानी है इसके अंदर, वो मिस आपने की कि अगर आपको अटैक होता है तो हमने क्या करना है, ठीक है। अगर आपको अटैक हो जाता है तो हम आपको डायजीपाम के इंजेक्शन लगाएंगे, एडमिट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। और अगर जरूर रिपीटेडली फिट्स हुए तो हम सिजेरियन आपका करेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये आपने बता तो दिया कि कॉपर आईयूसीडी दे, लेकिन अगर ओसीपीज अगर पेशेंट इस्तेमाल करेगी तो उसमें हमें हाई डोज ओसीपीज देनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेपो प्रोवेर अगर इंजेक्टेबल्स लेंगी तो फिर वो हमने 12 से 10 वीक्स पे इंटरवल करना होगा, ठीक है। इम्प्लांट्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स हम यूजली अवॉइड ही करते हैं, ठीक हो गया। तो मैम कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट एडवाइस आप। मैम इम्प्लांट्स इसमें दे दे नहीं सकते? यूजली हम इम्प्लांट्स पे डोज उसकी डिपेंड होती है ना, एडी की वो फिक्स डोज में जाएंगे। तो उसकी डोज चूंकि कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है एंटी एपिलेप्टिक से, एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं लीवोनॉर्जेस्टिल्स, तो फिर हम यूजली उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये आईयूसीडी दे सकते हैं। अब इसकी एपिलेप्सी का मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन का भी टोग निकाल के दिखा देती हूँ। तो वो फिर आप उसको इस तरह से लेके चलेंगे। काउंसलिंग ही ये पास्ट, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पास्ट पेपर ही है, ठीक है। हम कॉन्ट्रासेप्शन की जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें एपिलेप्सी की फर्स्ट लाइन वो भी आपकी नजर से गुजर जाएगा। नजर आ रहा है? जी 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 मैम। यार। यस मैडम। ठीक है। ताकि आपकी नजर से गुजर जाएगा तो फिर आपको याद रहेगा यहाँ पे क्लास में, ताकि हमारा टॉपिक भी एक दफा रिवाइज हो जाए। और ये देखिए, ये देखें, ठीक है। एपिलेप्सी के अंदर सब कुछ ही वन आ रहा है, लेकिन जो इम्प्लांट्स और ओसीपीज होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी डोज का डिप आ जाता है, ठीक है। ये देखो, एपिलेप्सी है, टेकिंग एंटीलेप्टिक ड्रग्स, सर्टेन एपिलेप्टिक ड्रग्स हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ स्टीरॉइड्स हार्मोन इन हार्मोनल। For up to date information on the potential drug interaction between hormonal contraception and anti-epileptic, please refer to the online drug interaction, ठीक है। सो दे तो हम सकते हैं सब कुछ, लेकिन यूजली ओसीपीज और वो उसके साथ एंटी एपिलेप्टिक के साथ, एपिलेप्सी इटसेल्फ के अंदर सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है एंटी एपिलेप्टिक से। अगर तो वो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स ले रही है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। समझ आ गई बात की? तो चूंकि ये वेलप्रोएट ले रही है जो एंजाइम इंड्यूसर है, तो फिर इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सही है मैम। सो इट डिपेंड, एपिलेप्सी इटसेल्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके साथ
एंटी एपिलेप्टिक कोई ले रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सही इसमें है। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको और भी चीज दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास वो मुझे नजर आ जाती है कहीं कि कौन सी ड्रग्स जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं और कौन सी नहीं है, वो भी कहीं मेरे पास लिखा हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है वो। मैडम जो आपने की शेयर की थी वो आप सेंड कर देंगी ग्रुप में? हम्म वो ना एक्चुअली टॉक्स मैं जो लेती हूँ ना, उस तरह से शेयर नहीं, वो चीज डिफरेंट है, वो ये ओके ओके, वाला। नो मैडम, ठीक है, ओके मैडम, कोई हाँ, नहीं मैम। क्योंकि थैंक ये यू वाला मैडम। जो है ना, ये मैं शेयर कर नहीं सकती, ये फिर जी अगर मैडम, आप लोग कोई नहीं, आगे थैंक फॉरवर्ड यू मैडम। जाता है तो वो फिर मुझे प्रॉब्लम आती है कि ये की जी जी आपने मैडम, निकाल दी समझ है। आ गई। ठीक है ना। ओके, सॉरी मैडम। वैसे मैंने इसलिए सिर्फ आपको दिखा दिए ताकि आपको रफली अंदाज, क्योंकि ये हम सबमिट करवाते हैं ना टॉक्स, तो ये उनमें से एक टॉक है जो सबमिट होते हैं, प्रॉपर ऐसे ही हम सबमिट करवाते हैं। उसमें से फिर ये मैंने बनाए हुए हैं तो उसमें से मैंने आपको दिखा दिए। जी, अभी और किसने परफॉर्म करना था स्ट्रक्चर डिस्कशन? मेरा ख्याल है कि एपिलेप्सी इतना काफी है, ज्यादा उसको क्या अब और मजीद क्या, किसी ने परफॉर्मेंस करनी है स्ट्रक्चर डिस्कशन की तो वो कर लें। हम्म क्या ख्याल है, कौन था जिसने परफॉर्म करना था यस मैडम। एपिलेप्सी? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं सोनिया। हाँ चलें। जी सोनिया, मैं आपको देती हूँ इस, आपका जरा डिफरेंट टास्क है स्ट्रक्चर डिस्कशन का, ठीक है। जी मैम। लिखिए। यस मैम। पेशेंट 28 years old, primary gravida, जी at मैम। 18 weeks of gestation, यस मैम। with complaint of headache. जी मैम। She is a known case of epilepsy for last 5 years. यस मैम। Taking clonazepam and lamotrigine. She had a last episode of epilepsy 4 months back. यस मैम। This is a structured discussion. यस, How स्टार्ट will करूँ you मैम? proceed? अच्छा, my name is Dr. Sonia. I am one of the exam candidate. I have read the scenario and ready for the structure discussion. After mutual introduction and completing the missing biodata like including the merit since LMP education. Then I will inquire about the presenting complaint epilepsy. Uh, is already mentioned the duration she has the epilepsy, known case of epilepsy since 5 years, and and uh, and the last fit is a 4 month back. So I would like to ask about the what I would like to ask about the uh, 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 what dose of the drug she is taking, and when was the last visit to her neurophysician, neurophysician, and what are the triggering factor. I want to ask about the aggravating factor like any noise, stress, light, and stress. And then I will ask about the any history of the hospitalization before that and whether the disease is controlled or not on these drugs, and whether now I will ask about the current pregnancy, whether she conceived spontaneously
spontaneously or on medication, it was plain or not, whether she is taking the folic acid or not, any history of any history of the dating scan done or not, and anomaly scan, as she is 18-week gestation, so anomaly scan has done or not, and any history of other medical disorder, other medical disorder, any family history of the epilepsy, any history of other medical disorder like hypertension, diabetes, TB, asthma, any history of blood transfusion and drug allergy, and any history of the smoking and support at the home. Now I will examine my patient in presence of the nurse. I will take height and weight to calculate the BMI of my patient, and then I will take vitals. I will check blood pressure, pulse, temperature, and respiratory rate. Then I will check the non-vitals. I will look for the pallor and eyes, and look for the pallor and jaundice in the eyes, and I will I will check the oral hygiene. Then I will palpate for the thyroid. Then I will palpate for the I will बस आप auscultate इतना the ज्यादा chest. ना कहें, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है, दिस इज नॉट द शॉर्ट केस। थोड़ा सा बस आप इसको कर ले कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन General और physical सिस्टेमिक examination, एग्जामिनेशन एंड पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, ठीक है। and on इतना then डिटेल I में will जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है स्ट्रक्चर डिस्कशन में, टाइम शॉर्ट है क्योंकि आपकी सारी then डिस्कशन अभी रहती है। I will do the per-abdominal examination, symphysial fundal height, lie and lie, fetal weight, सिम्फिजियो estimated फंडल fetal हाइट weight, 18 वीक्स के ऊपर नहीं होती, 24 वीक्स के बाद सिम्फिजियो 20. फंडल हाइट शुरू होती है। Okay, okay, ma'am. Okay. Then I will do investigation. Then I will do आपकी some पेशेंट की investigation. कंप्लेंट क्या थी? हेडेक के साथ आई थी, Headache, yes. तो उसको थोड़ा सा रूल आउट नहीं करेंगी कुछ और? Any history of the nausea, vomiting, ma'am, हाँ, along with the एसोसिएटेड headache ऑरा फेक है and ना, हो सकता है उसको ये हेडेक हो, एपिलेप्सी का अटैक होने वाला headache, हो, ऑरा फेज में headache, जा रही हो वो, nausea, तो सात बातें पूछिए। ब्लड प्रेशर का पूछिए, ब्लड प्रेशर के blood बारे में pressure, एग्जामिन करें कि कोई आपको हिस्ट्री ऑफ एनी हाइपरटेंशन। हिस्ट्री ऑफ एनी हाइपरटेंशन, मैम वो मेडिकल डिसऑर्डर में पूछ लिया है, हम्म हाइपरटेंशन, हम्म ब्लड प्रेशर, ये एनी हेडेक को नहीं मेडिकल ना डिसऑर्डर, आपने किया, मेंशन ही नहीं किया then कहीं पे। any history of nausea, vomiting, blurring of eyes, any history of the epigastric pain, एनी and history न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स neurological, लाइक टिकलिंग like सेंसेशंस, एनी वॉइस, ठीक sensation, है, तो ये ऑरा का पूछे। voice, इसमें बेसिकली or पेशेंट का ऑरा पूछना है आपने कि कहीं ये फिट से पहले वाला ऑरा फेज में तो नहीं आ गई है हमारे पास, ठीक है। जी मैम, चलें, ओके, ओके, हो गया ये, आगे चलें। एग्जामिनेशन हिस्ट्री हो एग्जामिनेशन, गई, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस। investigation, I want I will suggest baseline सिर्फ एक लाइन बोले, investigation. आई विल डू द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस। सीबीसी I को will do the जुमला एक बोलना है, ठीक है, डिटेल नहीं पूछनी, ठीक है। I will do the baseline investigation involving blood group, complete blood count, OGTT, OGTT, and hepatitis B surface antigen, and anti-HCV, anti-HCV, then ओके, एंटीनेटल शुरू करें, अब क्या करेंगी इसको? antenatal uh, uh, management. First of all, I will counsel my patient that she is having the pregnancy with epilepsy. It is a high risk pregnancy, so I will involve the multidisciplinary team involving the neurophysician, neonatologist, and may need the ICU care. So, as my ICU care, and then I will tell the feto-maternal risk of the disease. जैसे like maternal risk or the risk of the frequency of the epilepsy, it may increase in 40%, remain same in the 50%, and may decrease in 10%. Risk of the risk of the status epilepticus, and risk of the bleeding disorder due to risk of the bleeding disorder, and fetal effects are the congenital malformation. If as she is taking the two drugs, it is 8.5. In case of the monotherapy, it is 5.5, and risk of the epilepsy in baby, risk of the epilepsy in baby. If one parent is involved, it is 15%. If both parents are involved, it is 75%. If one sibling is involved, it is 10% of the risk, and risk of the intracranial hemorrhage. Then I will
I will follow the patient antenatally 2 weekly. At each week, I will inquire about the I will inquire about the control of the disease and the drug adherence. Drug adherence, its complication like irritability, low mood, low concentration, and depression. And then I will do her anomaly scan as she is at 20 weeks. 20 weeks. So I will do her detailed anomaly scan for congenital malformation like congenital malformation. Then I will at the then I at 24 4 weeks I will do her OGTT. At 28 week I will do her growth scan. 28 week OGTT 34 24 पे तो नहीं ना करते, 28 पे करते हैं। 28 week, हम्म। sorry ma'am. And then I will do the growth scan at 28 week. Then again at the with the interval of 3 to 4 weeks 10 मिनट्स हो I गए will सोनिया, repeat I will 10 repeat मिनट्स हो गए। growth scan. हम्म। Okay. चलते जाए, मैं आप पर कंप्लीट करें ना, तब मैं सिर्फ आपको टाइम बताया कि आपके If 10 मिनट्स। everything if everything remains normal, then my aim is to prolong the pregnancy as close as to term at 36 weeks. At 36 weeks, I will decide the mode of delivery. It will be the vaginal, and I will discuss the contraception and breastfeeding. During the when she came अगर in आपके labor, I पेशेंट को will स्टिफ फिट पड़ जाता है, आप क्या देंगी इस पेशेंट को? हाउ विल यू ma'am, मैनेज इफ पेशेंट गेट एन एपिलेप्टिक फिट ड्यूरिंग योर चेकअप? I will give the long acting benzodiazepine. नेम, डोज। Benzo diazepam, फाइव टू clonazepam. टेन मिलीग्राम 5 to 10 5 to मिलीग्राम आईवी 5 to स्टैट। 10 IV state. पहले 5 मिलीग्राम देते हैं, नहीं कंट्रोल होते, फिर 10 मिलीग्राम देते हैं। 10 फिर दूसरी milligram. ड्रग कौन सी यूज करते हैं अगर नहीं कंट्रोल हो रहे होते तो? Clonazepam ma'am. फेनिटोइन देते हैं। Phenytoin. फेनिटोइन देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही, देखो स्टेटस एपिलेप्टिकस किधर है, यहीं पे ही है। जी मैम. और फिर when मैम आगे बताऊं? जी when जी she came in बताइए। labor when she came in labor when she came in labor, I will again assist my patient. I will take vitals, I will do per abdominal examination, I will do CTG for the fetal monitoring. Then during labor I will keep patient pain free and well hydrated to minimize the triggering factor. And after delivery I will hand over the patient to a neonatologist to check any withdrawal symptom, poor feeding, and give baby vitamin K orally, not IM, because of the risk of the bleeding. And I will manage third stage of the labor actively. And postnatally I will encourage the breastfeeding and contraception. Copper IUCD is the best in epileptic. And if I will discuss contraception. If she want oral contraceptive, then I will give the high dose containing estrogen, COCPs. And I will also advise the safe motherhood and care of the baby, that she should not bath the baby alone. Anyone else should be present every time with her. And she should not she should feed the baby while sitting against the wall, leaning against the wall, to prevent her fall upon ठीक the है, baby. And she should surround ओके with सोनिया, ठीक है। बहुत cushion. ज्यादा टाइम ले रही हैं अब आप। सोनिया, पहली चीज तो ये कि आपकी वॉइस के अंदर ना बहुत ज्यादा मोनोटनेस है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स रोकना, पॉज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनर को फील हो कि जी आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको एम्फेसाइज कर रही हैं और उसको समझ आ रही हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जो टोन आपकी पूरे उस स्ट्रक्चर डिस्कशन में रही है वो सेम रही है, ठीक है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर चल पड़ा है ना, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। सो आपने जी कहीं पे रुकना है, कहीं पे एम्फेसाइज। अब आपने इस पूरे के अंदर आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो वो ले रही है उसके बारे में ये जुमला नहीं बोला कि वो सेफ है या नहीं है, बोला था? नहीं बोला, सेफ है लेकिन. वो सेफ है ना, लेकिन वो मुझे कैसे हाँ. पता चले कि आपको पता है कि ये सेफ है कि नहीं है? आप शी शुड पेशेंट को कैसे कंटिन्यू. बताएंगी कि जी आप चूंकि अभी आई हैं, आपको हेडेक है, मैं उसको चेक करूंगी, मैं उसको, आप उसको एडमिट करेंगी नहीं करेंगी, उसको साइन सिम्टम्स बताएंगी, उसकी ड्रग डोज को जो है वो उसको 4 महीने पहले फिट पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो हो सकता है उस बेचारी को दोबारा फिट पड़ रहा हो। मैम ये पेशेंट लेमोट्रिजीन ले रही थी ना? हाँ, लेमोट्रिजीन ले रही है तो वो सेफ है। मैम एक और भी कोई ड्रग आपने बोली थी ना, या सिर्फ वो ये एक ही ले रही ब्रोमेज़िपाम थी? नींद के लिए ले रही होगी ना, स्टेबलाइजर नी, वो तो नी उसकी स्लीप स्लीप के लिए होती है। एक्चुअली तो सही है। लेमोट्रिजीन ही ले रही है, लेकिन ब्रोमेज़िपाम वगैरह उसको दे रहे होंगे साथ में स्लीप डिसऑर्डर के लिए। सही है। ठीक है, तो फिर आप उसकी डोज ड्रग को एडजस्ट करवाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को उस वक्त इन्वॉल्व करें। फिर उसको फिट हो गया तो एक्चुअली आपका सवाल था कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो उसको लेफ्ट लेटरल करें, उसको ऑक्सीजन लगवाएं, उसका एबीसी करें, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करवाएं। फिर आप स्टेप वाइज ड्रग्स बताना शुरू करें कि मैं लोरेज़ीपैम दूंगी, डाइजीपैम, यूजली लोरेज़ीपैम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। डाइजीपैम इमरजेंसी ड्रग में ट्रे में अवेलेबल होता है, क्रैश ट्रॉली में। तो आप उसको डाइजीपैम देंगे, नहीं होगा तो आप उसको फेनेटोइन देंगे। ठीक है, ये Yes, बातें ma'am. आपने उसको बतानी है जरूर। स्टेटस एपिलेप्टिक्स का क्वेश्चन है ना ये तो, एग्जामिनर की की में लिखा हुआ है कि अगर उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाता है तो क्या करोगी। ठीक है, तो उसमें जी जी ये तो चीजें मिस नहीं ना करनी, लेफ्ट लेटरल और ऑक्सीजन और फीटल मॉनिटरिंग। डोज तो बेशक आप वो फिर आप एपिलेप्टिक फिट को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो असिस्टेंस वाली तरीके हैं उसको स्टेबलाइज करने वाली हैं वो तो करनी है ना, ताकि उसको ऑक्सीजन कम ना हो, उसकी टंग डिप्रेस ना हो जाए, फिट ना उसको पड़ रहा है तो और मैम प्रॉब्लम। ये जो आपने अभी ट्रीटमेंट बताई है, ये सीजर इन लेबर की है ना? और स्टेटस एपिलेप्टिकस मींस के रिकरेंट फिट्स हो रहे हैं? नहीं नहीं, वही कि और ये एक्यूट एक्यूट एपिलेप्सी हुई है ना, वही स्टेटस सिजर्स हो रहे हैं उसको। यस। तो दोनों के अंदर यही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, कि वो अभी फिट सही। पड़ रहे हैं उसको तो आप क्या देंगी। ठीक है, तो ये जरूर उसको बताइए कि जी वो करें। और आप ये क्यों उसको पहली पे ओसीपीज का बात कर रही हैं। ठीक है, आप उसको कहे कि जी सारी ड्रग्स एपिलेप्सी में सेफ हो सकती हैं, लेकिन समटाइम्स क्योंकि आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही हैं और उसकी वजह से जो है समटाइम्स आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो है वो एंजाइम इंड्यूसर्स हों तो वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ कि अगर मुझे एंजाइम इंड्यूसर वाली ड्रग्स मिल जाती है वो तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। उसका एक कोई ना फॉर्मूला भी था, किसी को याद? मैम जो नॉन एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो तो सीपीपी है ना, कार्बामेज़ापिन, फिनिटोन एंड हम्म, फिनोबार्बिटॉन। वो तो और याद है, जो मैम वो ये, एंजाइम इंड्यूसर्स वाली मुश्किल है ना ड्रग्स। यस मैं मैम। एक मिनट ठहरो, मैं देखती हूँ कहीं मेरे पास तो बड़े अच्छी वो चार्ट सा बना हुआ था, वो मुझे मिल नहीं रहा। बहरहाल आपने ये देखना है कि अगर वो एंजाइम इंड्यूसर्स ले रही हैं तो फिर आपने क्या लेना है, लेकिन लेफ्ट लेटरल और वो आपने जरूर उसको बताने हैं। ठीक है, मिस नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, अब सोनिया आपने मुझे दोबारा भेजनी है वॉइस नोट इसी का। ठीक है, जी मैम. जरा थोड़ा सा अप एंड डाउन करके ना अपने वॉइस को, नहीं, थोड़ा सा ओके मैम. वॉइस की टोन को, चीजों को जहाँ पे मोटा रखना है, जहाँ पे कम रखना है। ठीक है, जी जी ओके मैम. ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि एक मोनोटनेस आती जा रही थी और वो ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रही हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा अप एंड डाउन आप उसमें रखें कि हम आपको उसको बीच में कंसोल भी करें कि हम आपकी टीम होगी, ये सारा चलेंगे। ठीक है, जी जी बेशक स्ट्रक्चर डिस्कशन है, लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज आपने ये देखनी है कि वो आपकी अपनी भी वॉइस टोन चेंज आगे पीछे होती रहे। ठीक है, एपिलेप्सी का मेरा ख्याल है टोग ही काफी है, तो अगर आप गाइडलाइन दूसरी वाली भी है, लेकिन आई थिंक ये टोग ही काफी है। ठीक है, वो मुझे एंजाइम इंड्यूसर वाला मिलता है ना, फिर मैं वो आपसे शेयर कर दी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मुझे क्या बुखार ना लेमोट्रिजिन एंजाइम इंड्यूसर है. लेमोट्रिजिन एंजाइम इंड्यूसर है ना? जी सॉरी, क्या डॉक्टर कह रहे? सूरज, ये परसेंटेजेस बताना हर चीज में जरूरी होती हैं, जैसे आप इसकी वेरी एपिलेप्सी की हमने इंपॉर्टेंट, बताई है तो। वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी हफ्ता आपने करना ही परसेंटेजेस का काम है। अभी मैं इसलिए उस पर फोर्स नहीं कर रही
लेकिन आखिरी अपनी आपकी जो डायरी है, जो इंसिडेंट्स की डायरी है, वो बेशक अभी से ही बनाना शुरू कर दें। आज एपिलेप्सी और एस्थमा के एक पेज के ऊपर सारे इंसिडेंट्स लिखे, डॉक्टर उन्होंने भी शेयर किए हैं, डॉक्टर पलवशा ने भी, तो वो लिख लें, उन्होंने सीजर के किए हुए हैं, ये जरूर करने हैं, बताने हैं। मैम मैम इन्होंने अभी बोला था ना अपने स्ट्रक्चर डिस्कशन में, या शायद डॉक्टर मदिया ने बोला था कि 90% बेबीज एपिलेप्टिक मदर्स के नॉर्मल होते हैं ना। हाँ बिल्कुल वो सही है, लेकिन और जो डीफॉर्म्ड जो या मेल फॉर्म्ड बेबीज हैं उनकी परसेंटेज 25% है मैम, जी ये जी, बात मुझे वो याद आ एपी रही है लेकिन। वेलप्रोएट के साथ है, ये देखें यहाँ पे आपको परसेंटेजेस इसके अंदर लिखी हुई है, ये देखें। ठीक है। यस ये तो मैम। सूडिप का इंसिडेंस भी आपने, ये सडन डेथ सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करना है, ठीक है। ये भी मैं इसकी चार्ट के साथ आपको दिखा रही थी, जहाँ पे टेबल 5 है ना इसका, वहीं पे लिखे हैं। लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स मैं तो लास्ट डे पे ये देखे हैं, ये लिखे हुए हैं इंसिडेंसेस, ठीक है। सबसे ज्यादा वेलप्रोएट के साथ होता है 6 to 10%, बाकी होते हैं लेकिन जरा रिलेटिवली कम ही होते हैं, ठीक है। पोलीथेरेपी के साथ 8% कर लें, और मोनोथेरेपी के साथ 3 to 5% कर दें, सबसे ज्यादा वेलप्रोएट के साथ होता है, ठीक है। जी। और मैम कोई। अगर वेलप्रोएट के साथ पेशेंट प्री प्रेगनेंसी फेज में फर्ज करें स्टेबल है, तो इसको तो हमने फिर भी चेंज तो करना जी ही जी है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसको फिर भी चेंज करना है, इसको यस फिर मैम। भी चेंज करना है। न्यूरोलॉजिस्ट को कहना है कि जी इसको चेंज कर दें सूटेबल ड्रग पे, और फिर उसको कहना है कि आप कंसीव करें, ठीक है। यस मैम। इसको जरूर चेंज कराना है। वेलप्रोएट पे पेशेंट अगर कर जाता है कंसीव, तो फिर होल्ड करवाएं या लो डोज करवाएं, हाई डोज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। मैम लेमोट्रिजिन भी तो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग में आता है ना? हाँ, तो उसके लिए सिर्फ है तो प्रेगनेंसी सेव ना, सिर्फ एंजाइम इंड्यूसिंग में अगर आता है तो हमें सिर्फ ओसीपीज की हाई डोज देनी पड़ेगी, तो बेहतर है हम उसको कॉपर आईयूसीडी दे दें। हाँ सही। मैंने इसलिए बोला हाई डोज ऑफ द सीओसीपी। हाँ वो बोला लेमोट्रिजिन तो तो जरूर, लेंगे। लेकिन आप पहले जो सेफ है, आप क्यों उसको हाई डोज ईस्ट्रोजन दे रही हैं? उसका फेलियर ज्यादा हो जाएगा ना। फिर एक जी जी एपिलेप्टिक पेशेंट है, उसको डेली एक गोली खानी पड़ेगी, तो आप उसको कोई ऐसा इम्प्लांट बताना है वो बता दो, तो सेफ आईयूसीडी बोलिए ना। आईयूसीडी मोस्टली में सेफ है। जी जी सही समझ गई। और इस पेशेंट को आपको लार्क देनी पड़ेगी, शॉर्ट एक्टिंग पे क्यों जा रही हैं? वो ऑलरेडी स्टेटस एपिलेप्टिकस है, प्राइमरी ग्रेविड है। उसको कहें कि आप अच्छा अपना डिजीज का कंट्रोल करें, फिर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ओसीपीज इज नॉट अ गुड चॉइस, और वो पहले दफा में बताना तो ना बताएं ना, बताएं कॉपर आईयूसी दूंगी, लाग दूंगी, एज शी हैड एपिलेप्टिक फिट्स इन दिस प्रेगनेंसी, so I will counsel her for pre-pregnancy counseling and have a good control of epilepsy on monotherapy. So I will advise her long-acting reversible contraceptive in the form of copper IUCD. If she wants to take any oral contraceptive pill, then she had to take high dose OCPs. ठीक है, ऐसे करके बोलें। ओके मैम। जी, एपिलेप्सी से रिलेटेड और किसी की कोई क्वेरी हो? मैम इसमें विटामिन के मदर को भी देना है 36 वीक से? विटामिन के जो मदर वाला है ना, वो टॉप कहता है कि आप दे दें, और गाइडलाइन ग्रीन टॉप गाइडलाइन कहता है अब उसकी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो तो फिर हमें बोलना है या नहीं? बोलना चाहिए। बेटर टू बी क्वाइट, इफ एग्जामिनर आस्क तो फिर आप दोनों बातें उनको करते हैं, ठीक है। अच्छा। यानी ये पासिंग फेलिंग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और मैडम बेबी को आईएम देना है कि ओरल देना है? ओरल ओरल ओरल, यू डोंट नो अबाउट, ठीक है। तो अभी वेंटिलेयर है, उसमें क्या है, तो अभी ओरल ही देना है। ओरल की तो बच्चे की तो ओरल है ना रिकमेंडेशन, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एपिलेप्सी की गाइडलाइन मैंने नहीं खोली हुई थी, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये।
oral maternal vitamin K in the third trimester. Consider 10 milligram oral maternal vitamin K if there are not additional risk factor for hemorrhagic disease of new